इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन की कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं है। क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, one and all. With great hope that everybody is safe and keeping well, Franchise India teams welcome each one of you to our Business Opportunity Over Chai webinar series. Franchise India is 23 years old business consulting firm which is helping day in, day out all the investors in getting the business solutions and suggestions from our side. And we truly claim that no one sells more business than us because we have helped more than 5,000 international and national brands to expand their business with our 80 plus offices. With this introduction, I also welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am. And during the course of the webinar, they'll be sharing their insights and viewpoint with us so that we can take conscious and informed decision of selecting the right franchise. We also welcome our brand of the day, Arofer, and we invite and welcome Mr. Vikas Arora, who will be talking about his brand. It's a leading and trusted furniture brand. They already having 1 lakh happy customers. They have experience in market of 25 years, and they have 125 plus business dealers in India. But before I formally invite Anshul and Vikasji to talk about the brand, I would like to invite Gaurav sir and Sonia ma'am to talk about the initiative which we have taken for our investors, as well as the different programs we have selected for you. Over to you, sir and ma'am. A very good afternoon to everyone who has joined the Sunday edition of Business Opportunity Over Chai. We have been doing these series for over a year, and there are about 329 editions of businesses that we have brought to you in more than 1 year. And along with the weekend series and the Sunday events that we do, there are almost 200 more brands that we have presented. And at the same time, we also understand with so much of information passed on, it sometimes also becomes overwhelming for investors to evaluate and finalize what is appropriate for them. And since this was the reason that we started the Investor Advantage program, because we realized the information which is available is in abundance, and people find it little challenging to decide what is appropriate for them. So through this Investor Advantage program, you can take the benefit of taking time and blocking time of our advisors, our independent franchise consultants,
who can speak to you, who can brainstorm with you on the opportunities that are right for your market. And we also give you a lot of insights on your markets where you want to start. We give you insights on the brand. We also give you insights on the industry at large. And we also give time to analyze your own self-assessment and diagnose what is appropriate for you, which is based on your own profile, your investment appetite, and maybe the risk that you want to take. So you can reach on the hotline number of Franchise India, and we can block a session to help you and evaluate these opportunities that you wish to explore. And we also are bringing a lot of events every day. We have every day 7 o'clock event that we do city specific, and this is a 30 city program that will conclude by the end of this month, which is 30th of May. And we also are starting a new initiative from the 1st of the next month, which is 1st of June, which is called the Bharat Franchise Show. And this is because, you know, we receive a lot of inquiries, especially tier 2, tier 3 locations. There are a lot of prospective investors who are looking at opportunities. So we wanted to give a very close understanding of the opportunities which are available also in these small markets. So this would be a 100-day program which we would bring, wherein every single day we'll bring an opportunity for those micro markets. And we will also share with you in the due course of time a link where you can join, along with the dates that will come to you all by tomorrow. And you can come on these programs. You can even seek the opportunities which we present you for these markets. And I will also now request Mr. Maria to talk a little bit on the initiative and overall maybe the opportunity. Thank you, Sorry, Sonia. I think my volume needs correction. थैंक यू सोनिया एंड वेलकम फ्रेंड्स, एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वेबिनार सीरीज में। ये सीरीज आज पूरे 1 साल से चल रही है। हमने इसको लास्ट ईयर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब शुरू किया था कि वी वांटेड टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज इन कंफर्ट विद पीपल सिटिंग एट होम, दे कैन चूज अ अपॉर्चुनिटी। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला कि एक भी दिन हमने ये वेबिनार बंद नहीं किया। एवरी संडे, एवरी हॉलीडे, इवन दिवाली के दिन किया था, होली के दिन किया था, न्यू ईयर वाले दिन किया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक भी दिन हमने मिस नहीं किया अपॉर्चुनिटी देने से। आज भी हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। एंड टॉक अबाउट विकास जी हिस्ट्री एंड हाउ ही स्टार्टेड द बिजनेस। बट उससे पहले मैं 3 चीज़ों में बात करूंगा। एक तो आप अपने लिए जब बिजनेस चुनते हैं उसका एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, और हम आपको हर उस सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। जब प्री डील होती है, जब आपको राइट इंडस्ट्री चुननी है कि क्यों आपको उस इंडस्ट्री में जाना है, और उसकी फिजिबिलिटी समझनी है, उसकी ग्रोथ समझनी है, वो इंडस्ट्री कैसे बढ़ने वाली है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जैसे आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन है। विकास जी के आज भी बहुत सारे डीलर हैं, लेकिन अब ये अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स बना रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो आज की डेट में पूरी चॉइसेस चाहता है एक ही स्टोर से, और ये एक बहुत बड़ी चेंज है। तो लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। जो अनऑर्गेनाइज में था वो आज ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हम आपको बहुत सारी ऑप्शंस उस तरह की देते हैं। तो आपको प्री डील में पता चलता है कि क्या क्या डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, क्या क्या उसकी फिजिबिलिटी है, क्या उसकी ग्रोथ स्पेस है, एंड उसके अंदर लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है कैसे आप ब्रांड की चॉइस करें, उसमें फाउंडर कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टनरशिप के अंदर किसके साथ आप पार्टनर कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, वो उसकी विजन क्या है, क्योंकि अगर उनका ब्रांड ओनर का विजन ही कुछ बड़ा है तभी आपका भी ग्रोथ उसके साथ हो पाएगा। तो वो बहुत जरूरी जानना है। उनकी पास्ट बैकग्राउंड क्या है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनके जो पुराने जो पार्टननर थे, वो डीलर थे या फ्रेंचाइजी थे, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हो रहा है। उसके बाद डील स्ट्रक्चरिंग के भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, राइट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। इन सब चीज़ों में हमारे कंसल्टेंट्स भी आपको मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, राइट एडवाइस देते हैं। 4 चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आप राइट चॉइस ले पाते हैं। एक तो राइट इंडस्ट्री, राइट ब्रांड, आपका फाइनेंशियल गोल और आपकी माइक्रो मार्केट। इन चारों को कनेक्ट करेंगे तभी आप राइट इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। बहुत सारी चॉइसेस भी हैं। फ्रेंचाइज इंडिया के पास आज 1000 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट सब इंडस्ट्रीज हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज में से राइट ब्रांड को चुनना और राइट फॉर्मेट को चुनना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भी बहुत सारी अलग चॉइसेस हैं। लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स आर एंटरिंग इंडियन मार्केट। सो वी हैव मास्टर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज, एरिया फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज। एरिया और मास्टर की अप्रोच जो होती है बिल्कुल अलग होती है। वहाँ लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना पड़ता है। आपको 10 से 15-20 साल समझना पड़ता है कि कैसे आप ब्रांड को डेवलप करेंगे ओवर द टाइम, एंड यू आर एबल टू डेवलप द मार्केट। सो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन सारी ऑप्शंस को अगर आप
एड्रेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ आप एक वो शुरू करिए. You can set up a consultation with us. It's absolutely free, 30-minute consultations. Because of this lockdown going on, we are giving free. All our consultants, including me and Sonia, are available. So if you've not booked your consulting, please go on a business hotline number and block your consulting with us. हमारा जो ये शो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके घर, ये चलता रहेगा और इसमें आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे. नए नए ब्रांड्स हम लाते रहेंगे और शाम को जो हम नया शो शुरू कर रहे हैं जो 7 बजे का है, वो 1 तारीख से शुरू होगा. बहुत बड़ा शो है जो इसमें 100 सिटीज में हम जाएंगे. ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि हम स्मॉलेस्ट ऑफ द सिटीज ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू कवर दैट. इट इज अ रियली भारत शो, सो इट्स कॉल्ड भारत फ्रेंचाइज शो. और ये शो आपके सिटी में भी जरूर आएगा, लेकिन आप कोई भी सिटी का अटेंड कर सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं. तो अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना जो नंबर है हॉटलाइन का सेव कर लीजिए कि हम आपको रेगुलर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेजते रहें और आप इस उस पीरियड में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को असेस कर पाएंगे. So let's start with today's opportunity. I will like to invite विकास जी to open up and talk about his journey. कैसे इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की. मैं बहुत इंप्रेस हुआ था इनसे जब मुझे ऑफिस में मिलने आए और शायद हमारी पहली मीटिंग में ही हमने डिसाइड किया कि we will love to work with him because he has energy and he wants to make a change. And मुझे हमेशा वो एंटरप्रेन्योर अच्छे लगते हैं जिनमें अपना क्लैरिटी और विजन होता है और वो हमेशा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री में बिताई होती है. उनको पता होता है वो प्रॉब्लम है क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से आते हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री को देखा है, उसको नर्चर करते देखा है, तो उनको प्रॉब्लम साफ दिखती है और फिर वो उनका जो विजन होता है वो बहुत क्लियर होता है. तो उस टाइम वो एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. कंसल्टिंग फर्म लाइक अस, वी गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड ऑल्सो आई थिंक इट इज एक्साइटिंग मूवमेंट फॉर विकास जी ऑल्सो टू टेक हिज नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट ऑर्बिट. ट्रेड बहुत किया है लेकिन अब ये अपने रिटेल स्टोर्स खोल रहे हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट अबाउट हिज प्रेजेंटेशन, विकास जी अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बात करें, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं तो इट विल गिव अस अ लिटिल बिट बेटर इनसाइट. ओवर टू यू विकास जी. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने हमें इस लायक समझा और मैं पूरी टीम का बहुत थैंक्स करता हूँ. फ्रेंचाइज इंडिया का अपने बारे में मैं बताऊं तो started in 1976 when my father came from Rohtak to Katla with his younger brother. हमारे फादर जो थे वो बैंक में जॉब भी करते थे और साथ साथ उन्होंने हमें बिजनेस भी कराया. तब हमने शुरू किया था फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग चेयर्स से. एक छोटी सी दुकान लेके किराए पे बस स्टैंड के सामने करनाल में, और धीरे 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 उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा दी फोल्डिंग बेड की, फोल्डिंग चेयर्स. फिर टाइम आया एक कि जब फोल्डिंग चेयर्स खत्म हो गई मार्केट में, प्लास्टिक चेयर इंट्रोड्यूस हो. इट वाज इन 1988 आई पीआईपी और मॉडरेना कंपनी ने स्टार्ट किया प्लास्टिक चेयर्स सेकंड इंडिया में. और तब हमें अपॉर्चुनिटी मिली. वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ऑल द मेजर कंपनीज लाइक नीलकमल, सुप्रीम, सेलो, तालिका. इन चारों के हम डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे पूरे नॉर्थ इंडिया. और उसके बाद 2016 तक हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप करी है, अभी भी कर रहे हैं. लेकिन अब 2016 से हमने अपना ब्रांड एक बनाने की कोशिश करी. उसका नाम हमने रखा एरोफर, मींस अरोड़ा फर्नीचर, एरोफर. तो दिस वे वी स्टार्टेड द जर्नी. और उसके बाद प्रभु की कृपा ये रही कि प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट. बाकी सभी कंपनीज 1 साल की गारंटी देती थी, हमने 2 साल की गारंटी देनी शुरू करी क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम, मार्केट में एक्सेप्टेंस शुरू हो चुकी थी. अब हमारे पास नया चैलेंज था कि हमारे पास मशीन सिर्फ एक थी और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी. तो हमने नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर लाए, खाली चेयर सेट करके टेबल, स्टूल, डबल टॉप टेबल, डाइनिंग टेबल जो बहुत बड़ी मशीन में आती है, विदाउट आर्म चेयर्स जो बहुत कम सेल होती है लेकिन वो भी चाहिए होती है. तो इस तरह से हमने 20-25 मॉडल्स इंट्रोड्यूस करे 4 साल में. और आज की डेट में हम एवरेज 1 लाख चेयर्स पर एनम सेल कर लेते हैं विद अवर 125 डीलर्स. अभी सिनेरियो हमने थोड़ा चेंज किया है कि एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स बनाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर आप नहीं बदलोगे ना
फिर वक्त आपको पीछे छोड़। तो आज की डिमांड यही है कि आप समय के साथ चलो और एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर जो कि मतलब घुसते ही अंदर लगे फील आए कि हाँ एक ब्रांड स्टोर है, यहाँ पर हम एक अच्छी चीज लेने आ रहे हैं। ये प्लास्टिक चेयर एक ऐसी चीज है कि हर घर की जरूरत है। मतलब ये एसेंशियल है, नॉट लग्जरी, इट्स एसेंशियल। छत पे रखनी है, कमरे में रखनी है, बेडे में रखनी है, पार्क में रखनी है। पिछले लॉकडाउन से मतलब इतना बूम आया है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि पहले चेयर्स कम बिकती थी। अब कारण उसका एक तो ये है कि लोग घर पे बैठे हैं, ऊपर छत पे अलग चाहिए, बाहर बेडे में अलग चाहिए, कमरे के लिए अलग चाहिए, तो वैरायटी काफी अलग अलग होगी। इसमें प्रीमियम सेगमेंट भी आ गए हैं हमारे पास, हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मुझे जो दिख रहा है, बाकी यू ऑल नो बेटर। ओवर टू यू वर्क। And very good, and I think you have seen the transition 78 से जर्नी शुरू की, पहले फोल्डिंग बेड्स और उसका टाइम था, हम सब ने अपनी ग्रोइंग ईयर्स में देखा है। और फिर जैसे प्लास्टिक चेयर आई, जो वीआईपी, नीलकमल जैसी कंपनीज ने इस इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज किया, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। और आज जैसे विकास जी हैं, वो 1 लाख चेयर ऑलरेडी बेच रहे हैं फ्रॉम फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, जो सबका माल रखते हैं, इनका भी रखते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम बहुत बिकता है क्योंकि इनकी अपनी एंड टू एंड इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल। और अब उसका ये अपनी कारण ये ना, ब्रांड का जो ये बेचते हैं तो उसमें उनको मार्जिन डीलर को मिलते नहीं। हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत रिजनेबल प्राइस में है और डीलर को एक अच्छा मार्जिन मिलता है बेचने। मतलब ब्रांडेड शेयर्स में हार्डली 5%, 10%, 10% भी बहुत ज्यादा बोल दिया उन्होंने, मतलब 5-7% ही मिलता है। करेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में डीलर को मतलब 25 to 35% तक मिल जाता है, तो 2 साल की गारंटी पे देता है, तो इस वजह से स्कोप बढ़ गया। या इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हम क्या करेंगे विकास जी, एक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और उसके बाद डिटेल में क्वेश्चन आंसर लेंगे। विल गेट इनटू अ डिटेल क्वेश्चन आंसर। So let's start with the presentation. Anshul, if you're ready, we can go with the presentation. Yes. Yes. So, good afternoon, everyone. This is a presentation on Aerofer. Very good start from Vikas ji. Thank you for sharing this story. We of course have this in part of our presentation also. So in this presentation, हमने ये presentation 4 section में divide की है. First is company profile, then plastic furniture industry and how this is evolving, opportunity कैसे इसमें बन रही है. Then India winning strategy, जहाँ पर हम बात करेंगे exclusive brand outlets, how is that opportunity coming up, and then last section very important is our franchise proposal, right? So we start with first company profile. Aerofer as a name, Aurora Furniture. So विकास जी ने ऑलरेडी अपने बारे में एक स्टोरी प्रेजेंट की है। 1976 में इनके फादर साहब ने बिजनेस शुरू किया, देन ओवर 6-7 इयर्स वो एक सेपरेट बिजनेस में गए जहाँ पे प्लास्टिक फर्नीचर उन्होंने शुरू किया। एंड 2016 में विकास जी ने खुद एरोफर एक ब्रांड लॉन्च किया है, जहाँ पर 26 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड चेयर्स एंड अदर फर्नीचर अब ये बना रहे हैं, राइट। जैसे कि बताया गया 1 लाख प्लस हैप्पी कस्टमर्स, एन एनुअल सेल ऑफ 1 लाख चेयर्स थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 125। एरोफर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जितने भी सिटीज़ हैं इसी बेल्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ हरियाणा में दूसरी लोकेशंस पर भी हैं। ओवरऑल 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो विकास जी का खुद एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। अदरवाइज कंपनी तो 1980s से इस कैटेगरी में है। So overall 40 years of experience, but Vikas ji himself 25 plus years in this business. तो बहुत अच्छी तरह से इस बिजनेस को ये कंपनी समझती है। प्रोडक्ट रेंज, प्राइस पॉइंट्स, मार्जिन्स, डीलरशिप नेटवर्क एंड रिलेशनशिप्स, सभी तरह से एक सक्सेसफुल ऑपरेशंस
बहुत एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं। Product mix, Vikas ji, I would like to invite you to talk about the product mix. Hello, Vikas ji. Okay. So 3 broad categories here. In fact, plastic chairs, जिसमें 20 different type of chairs company के available हैं. Then plastic stools, garden furniture, और इन 3 broad categories के अलावा कंपनीज अगर आप स्लाइड में नीचे देखेंगे तो chairs, tables, stools, step stools, almiras, kitchen stools, then doormats, planters, dustbins, ladders, shoe racks, revolving chair, बहुत ही important segment है revolving chairs, ये भी plastic furniture में अब आने लगी हैं. Slides, preschool segment में बहुत important हो जाते हैं slides, and it's a very good segment. Refrigerator stands, towel stands, garden furniture. So एक complete range है कंपनी के पास जो आज एक अपने फ्रेंचाइजी को दे सकती है. ऑलरेडी डीलर नेटवर्क 125 प्लस डीलर्स के पास एक कंप्लीट रेंज अवेलेबल होता है. So that's the management team. Vikas ji himself as MD of the company and his mother very much active in the business today. एक बहुत important aspect जो company रखती है एक social responsibility and dedicated to providing great plastic furniture, catering to this middle income group, bringing in the best furniture possible. एक बहुत ही exciting price points पर लेकर आई है. That is our market mapping. इसमें आप देखेंगे सुप्रीम, नीलकमल और सेलो. So ये मैट्रिक्स हमने बनाया 2 पैरामीटर्स पर. One is quality of the product and second is price points, right? So इसमें आप देखेंगे कि कंपनी क्वालिटी वाइज एट पार है सुप्रीम, सेलो एंड नीलकमल, जो 3 बड़े प्लेयर हैं प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री में. So quality wise very much similar at par with these companies, but price point में आप देखेंगे कि ये इन चारों से efficient, इन तीनों से efficient है, इनसे lower pricing पर है. So that is a great advantage that company is bringing to its dealers and to customers. जैसे हमने देखा कि tier 2 markets, emerging towns, suburban cities, ऐसी लोकेशन से अपॉर्चुनिटी बन रही है जहाँ पर मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर्स they want to use ये इस टाइप के अच्छे फर्नीचर यूज करना चाहते हैं, बट वो सुप्रीम में नीलकमल को अफोर्ड नहीं कर पाते. सो वहाँ पर आरोफर फिट्स ब्यूटिफुली with its wide range of products and aggressive pricing strategy. And similarly डीलर्स को भी एक अच्छा मार्जिन, जैसे विकास जी ने बताया, अपने डीलर्स को भी एक अच्छा मार्जिन बेटर देन कंपटीशन ये दे पा रहे हैं. राइट विकास जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज? जी. इसमें आप ऑन द प्रोडक्ट मिक्स, ऑन द प्राइसिंग आप बताना चाहेंगे? हाँ, प्राइसिंग की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं विद MRP अराउंड 500 टू 800 के बीच में है सारे प्रोडक्ट्स, बहुत रीजनेबल प्राइस में. प्राइसेस नेवर प्रॉब्लम इन दिस, बहुत कम प्राइस में. जी. एंड जैसे कंपनी का डीलर नेटवर्क भी एग्जिस्टिंग डीलर नेटवर्क जो दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे पर है, मोस्ट ऑफ द सिटीज लाइक सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, दीज सॉर्ट ऑफ लोकेशन जो टियर 2 सिटीज है. सो यहाँ पर 125 प्लस डीलर्स हैं और एक बहुत अच्छी सेल्स यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कंपटीशन सभी तरह से प्रेजेंट है. All other 3 brands are also available, but company on an average 1 lakh unit per year sell कर रही है, which is a very good number. So अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन पर, जहाँ पर हम बात करेंगे प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री के बारे में और कैसे ये इंडस्ट्री अब ट्रांजिशन में है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, from a distributor-led industry to players moving to EBOs. And EBOs बनाने की ज़रूरत
क्यों है इस मार्केट में, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। सो ओवरऑल सो ओवरऑल प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री 3300-3400 करोड़ की इंडस्ट्री मानी गई है इन 2020 एंड ऑन एन एवरेज 22% ऑर्गेनाइज्ड है, 78% अनऑर्गेनाइज्ड है। सो ऑन एन एवरेज 700 करोड़ organized market and on an average about 2600 crore unorganized market. But अगर आप दूसरा चार्ट देखें तो organized segment जो है वो on an average 20% से ग्रो कर रहा है, जबकि unorganized market 10-12% पर ग्रो कर रही है। तो अगले 5 साल का अगर फिगर देखें तो organized segment जो है will be about 30% of the industry. So 2025 में ये इंडस्ट्री 3300 से बढ़कर 6000 तक जाने की पोटेंशियल है। And with that 6,000 crore, 1,800-1,900 crore would be organized market. So बहुत तेजी से ये बदलाव आ रहा है इंडस्ट्री में, जहाँ पर मेजर प्लेयर्स, क्वालिटी प्रोडक्ट, ब्रांड ट्रस्ट, ये सब फैक्टर्स कस्टमर की तरफ से एक डिमांड है और एक ड्राइविंग फैक्टर है, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइज सेगमेंट को ग्रो करते हुए देख रहे हैं। सो ब्रांड ट्रस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट को ग्रो कर रहे हैं बहुत तेजी से, राइट। ओवरऑल प्लास्टिक फर्नीचर इंडस्ट्री में आप देखेंगे 3 सेगमेंट हैं जो एज अ कस्टमर जिनको काउंट किया जा सकता है। रेजिडेंशियल स्पेस, obviously the largest consumer, 64% of the industry is around residential. And residential में जैसे विकास जी ने भी स्टार्टिंग में बताया, हर तरह से ये फर्नीचर यूज हो सकता है। आपने पिक्चर्स में भी देखें तो गार्डन फर्नीचर है, रूम फर्नीचर है, देन किड्स के लिए फर्नीचर अब प्लास्टिक में बहुत अच्छा आने लगा है, एंड देन आप बालकनी में रख सकते हैं अपने। सो मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर प्लास्टिक फर्नीचर टुडे, राइट। At the same time, second segment, which is more commercial, office space, hospitality, industries. So यहाँ पर office chairs and office tables की requirement है about 22%. And last, but a growing segment also is events business, where you see a lot of plastic chairs being used, right? So contract furniture इस segment को बोला जाता है। बट ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल रिटेल कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, 64% मार्केट कैप्चर करा हुआ है, राइट। सो अभी अपॉर्चुनिटी हम कहाँ पर देख रहे हैं? अगर आप देखें तो बूम टाउन्स, रेस्ट ऑफ अर्बन, डेवलप्ड रूरल एरियाज, जैसे मैंने भी बताया, सब अर्बन टाउन्स, ऐसी लोकेशन से ये डिमांड बहुत ज़्यादा अभी इस समय है प्लास्टिक फर्नीचर की। एस्थेटिकली गुड, मॉडर्न डिज़ाइन, ड्यूरेबल, पोर्टेबल एंड इकोनॉमिकली अफोर्डेबल प्लास्टिक फर्नीचर। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो टियर 2 एंड सब अर्बन टाउन से डिमांड प्लास्टिक फर्नीचर की बहुत तेज़ी से बनती हुई नज़र आ रही है। एंड ऑलरेडी कंपनी के डीलर नेटवर्क है इस नेटवर्क में, इस मार्केट में, बट अब एक EBOs, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट की तरफ कंपनी जाना चाहती है। सो इस इंडस्ट्री को समझने के बाद जहाँ पर हमने देखा कि इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, अब इसमें कंपनी की विनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? सो इंडस्ट्री इज ऑल्सो विटनेसिंग अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। तो आप देखेंगे कि नीलकमल एंड सुप्रीम फर्नीचर जो ट्रेडिशनली डिस्ट्रीब्यूशन लेड कंपनीज थी, इन्होंने भी पिछले 4-5 साल में एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स की तरफ एक अपना फोकस दिखाया है। एंड बोथ द कंपनीज हैव डन 40-50 स्टोर्स अंडर EBOs। EBOs बनाने की रीजन क्या है? ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम रिटेल कस्टमर, जैसे गौरव सर ने स्टार्टिंग में बताया कि एक कस्टमर चाहता ही है कि वो जब एक शॉप पर जाएं तो उनको कंप्लीट रेंज अवेलेबल हो, वो सारी तरह के प्रोडक्ट देख पाए एंड देन ही कैन मेक अ डिसीजन कि मुझे क्या लेना है, राइट। सो एक बेटर कस्टमर बाय एक्सपीरियंस EBO दे सकता है। फुल रेंज कैन बी डिस्प्लेड, ऑफ कोर्स
डीलर्स बिकॉज वो मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट डीलर्स होते हैं, उनके पास स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, तो वो सारी रेंज नहीं रख सकते। डीलर्स सिर्फ एक फास्ट मूविंग रेंज ही अपनी डिस्प्ले में रखता है। तो EBOs में एडवांटेज ये है कि आप एक फुल रेंज डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ के साथ जब कस्टमर एक EBO में जाता है तो वहाँ पर उसको प्रोडक्ट नॉलेज दे पाता है अपना EBO ओनर जो ऑपरेटर है वहाँ पर, वो पूरी तरह से डिटेल डिस्कशन कर पाते हैं, राइट। एक्सटेंसिव प्राइस पॉइंट्स ऑफ कोर्स बिकॉज एक फुल रेंज है, सो मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स पर प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, तो हर तरह से कस्टमर को कैटर कर सकता है। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कुछ कस्टमर डील्स, बेटर कस्टमर डील्स कैन बी डन थ्रू EBOs, एंड कंपनी भी अपनी तरफ से कुछ प्रमोशनल स्कीम्स रन करना चाहे तो वो EBOs के नेटवर्क के थ्रू बेटर उसको रन कर सकती है। सो ओवरऑल these are few reasons जो कंपनीज अब EBOs की तरफ बढ़ रही हैं, and this is a demand from the customer side, and that's why companies are responding to setting up EBOs. So EBO value proposition, of course, available, complete range of plastic furniture and some new exciting product range can also be launched through this channel. So available, affordable, because exciting customer deals, price points available, from all sort of price points available, promotional schemes. So it becomes very affordable, catering to every customer. Accessible, of course, creating a store network close to customer groups. जहाँ पर भी कस्टमर अवेलेबल है वहाँ पर हम EBO लेके जा सकते हैं, अनलाइक अ डीलर विच इज बाउंड बाय हिज लोकेशन। EBO है, आप जहाँ पर कस्टमर है वहीं पर आप EBO सेटअप कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल, yes, store format that completely copy a modern trade store, a modern store, very well designed and nicely spaced out, so customer जब आएंगे तो उनको सभी प्रोडक्ट नाइसली डिस्प्लेड दिखते हैं, एक्सीलेंट बाय कस्टमर बाय एक्सपीरियंस वो एक ऑफर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो अडेप्टेबल। सो EBOs है एंड कंपनी जैसे हमने डिस्कस भी किया विकास जी के साथ, देयर आर 2-3 फॉर्मेट्स दैट कैन बी डन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ मिनिमम 300 स्क्वायर फीट टू एज लार्ज एज 1000 स्क्वायर फीट आउटलेट ऑल्सो। तो कोई लिमिटेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि हमें 300 का ही करना है, 400 का ही करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 300 एंड वहाँ से शुरू करके हम 500, 1000 स्क्वायर फीट, 800, 700, जो भी स्पेस अवेलेबल हो उसके हिसाब से मॉडल क्रिएट किया जा सकता है, राइट। सो अवेलेबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, acceptable in terms of customer requirement and adaptable in terms of the format. So सारी तरह से एक EBO आज की मार्केट की डिमांड को केटर करने के लिए बहुत ही सही फॉर्मेट है, एक स्ट्रेटजी है। Okay. So sustainable competitive advantages that enables Arofer to address growing opportunities. So यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटी है एंड कैसे ब्रांड Arofer आज रेडी है उस अपॉर्चुनिटी को कैटर करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ फर्नीचर इंडस्ट्री। जैसे हमने बात की अराउंड 12-13% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऑर्गेनाइज सेगमेंट ग्रोइंग एट 20%। सो ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है? ब्रांड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, ऑलरेडी 40 years इन द बिजनेस, विकास जी खुद 25 years से इसमें जुड़े हुए हैं। लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू फुलफिल मार्केट डिमांड। सो जिस भी तरह से मार्केट डिमांड बनती है, company is able to cater to that demand. Even new products can be done, right? Industry is becoming organized and shift toward EBOs. So brand already has 125 plus dealer network, and that brings an experience of retail and retail customer. So कंपनी आज बहुत अच्छी तरह से समझती है कि रिटेल एंड रिटेल कस्टमर क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है। ऑलरेडी दिस 125 डीलर नेटवर्क से बहुत सारी लर्निंग कंपनी ने कैप्चर की है, उसके बेसिस पर ही अपने नेक्स्ट स्टेप्स हम डेवलप कर रहे हैं। एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट enables to meet larger customer groups at mid and lower end of the demographics. So इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ साथ कंपनी भी रेडी है
अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी प्राइसिंग के साथ. एंड ऑल्सो नाउ थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, EBO फॉर्मेट इन डेवलपमेंट, जो हम ऑफ कोर्स फ्रेंचाइज मॉडल में लेके आएंगे. सो इंडस्ट्री के साथ साथ कंपनी भी आगे ग्रो कर रही है, अपने फॉर्मेट्स चेंज कर रही है. सो दैट इज अ गुड पॉइंट. Emergence of new applications for plastic furniture, that is another important aspect. इंडस्ट्री में आप देखेंगे न्यू कैटेगरीज की डिमांड अब मार्केट में है. एंड एट द सेम टाइम कंपनी का अगर आप देखें डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ऑलरेडी बहुत लार्ज एक पोर्टफोलियो केटर कर रही है, विच हैज अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस इन द मार्केट. एट द सेम टाइम रिच R&D फैसिलिटी एबिलिटी विद द कंपनी, जो एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कंपनी रेडी है. तो जैसे भी मार्केट डिमांड हो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं. देयर इज एनफ R&D फैसिलिटी अवेलेबल इन द कंपनी टू ब्रिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स, राइट. सो जैसी जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट की बन रही हैं, कंपनी हर तरह से रेडी है, प्रिपेयर्ड है टू मीट दोज डिमांड्स. So that brings us to our last section, very important, franchise proposal. इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एरोफर के साथ जुड़ सकते हैं. Of course, so EBOs to be brought in by franchising under FOFO model, franchise owned, franchise operated model. इसमें फ्रेंचाइजी का रोल कैसे होगा? फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट टू सेटअप द रिटेल स्टोर. सो ऑफ कोर्स आपको अपना एक शोरूम बनाना है, इन्वेंट्री प्लानिंग करनी है, रिटेल कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन और उनको सेल्स, डिप्लॉय सेल्स टीम फॉर B2B कॉर्पोरेट ऑर्डर्स. सो दैट इज अगेन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस. जैसे हमने पहले भी देखा, 64% इज रेजिडेंशियल, 22% एंड 14% रेस्ट 36 इज मेनली B2B सेगमेंट, राइट. और यहाँ पर भी डीलर वो नहीं कर पाते, प्रोडक्ट को पुश नहीं कर पाते ऑन दी B2B सेगमेंट, राइट. सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ एन EBO और अ फ्रेंचाइज मॉडल, कि आप दोनों तरह से सर्विस कर सकते हैं. रिटेल कस्टमर जो आपके शोरूम पर आ रहे हैं उनको आप इजीली केटर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स. सेकंड, आप एक सेल्स टीम रखेंगे जो B2B कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आपके लिए जनरेट करेगी, ऑल फ्रॉम ऑफिसेज, hotels, restaurants, preschools, and events companies, contractors. So वो एक सेगमेंट है जो डीलर नेटवर्क आज की डेट में नहीं कर पाता सर्विस, जो हम EBOs के थ्रू, अपने फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं, राइट. देन लोकल स्टोर मार्केटिंग एंड लोकल लॉजिस्टिक्स फॉर प्रोडक्ट डिलीवरी टू कस्टमर्स. तो वो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है. कुछ कस्टमर्स चाहते हैं कि प्रोडक्ट उनके होम डिलीवरी हो जाए या ऑफिस डिलीवरी हो जाए. तो वो एक एस्पेक्ट है जो हम फ्रेंचाइजी को चाहेंगे कि वो सर्विस करें, राइट. सो ओवरऑल आपने शोरूम सेटअप करना है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, प्लान करना है. ऑफ कोर्स कंपनी आपको सपोर्ट करती है, गाइड करती है कि किस तरह से आपको इन्वेंट्री रखनी है, कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कौन से प्रोडक्ट मिक्स रखना है. देन ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ रिटेल कस्टमर्स एंड B2B ऑर्डर्स, लोकल स्टोर मार्केटिंग एंड सम सपोर्ट ऑन द लॉजिस्टिक साइड. ये एक हमारा फाइनेंशियल मॉडल है, एक जेनेरिक प्लान इसमें हम प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर अ 500 स्क्वायर फीट शोरूम. जैसे मैंने पहले बताया, कोई लिमिटेशन नहीं है. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 300 टू एनी साइज ऑफ द स्टोर अवेलेबल. उसके लिए प्लान कस्टमाइज किया जा सकता है. बट फॉर अ 500 स्क्वायर फीट मॉडल वी आर लुकिंग एट अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 15 lakhs, जिसमें 4 lakh रुपीज स्टोर फर्निशिंग कॉस्ट. अगर आपके पास शॉप अवेलेबल है तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट हम सेव कर पाएंगे. इनिशियल स्टॉक ऑफ 5 lakh rupees, ऑफिस इक्विपमेंट 2 lakh rupees, which is mainly your POS system and few other things. Pre-opening budget of 70,000, which is trade licenses and initial marketing budget, and a franchise fee of 3 lakhs. जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास एक शॉप अवेलेबल है तो ये इन्वेस्टमेंट और भी कम हो सकता है. In terms of the sales, on an average, 5 to 6 lakh rupees monthly sale easily our franchisees should be able to do. And company एक 35% margins propose कर रही है. So on a sale of
let's say 6 lakh rupees, 35% means 2,10,000 rupees आपको ग्रॉस मार्जिन मिल जाता है. 6 लाख रुपीस सेल्स का मतलब ये है कि 20,000 रुपीज सेल डेली. इसमें आपके दोनों सेगमेंट हैं, रिटेल कस्टमर्स एंड B2B ऑर्डर्स, राइट. So 5-6 lakh rupee sales in a month is not a problem. You should be able to do at 35% margin on an average. 2 lakh rupees gross margin आपको मिलता है, जिसमें से आपने rent, staff, little bit of local marketing, electric bills, some other expenses ये निकालने हैं, which I believe on an average should not be more than 1.25 to 1.3, 1.4 lakh rupees. So on an average, इसमें इस business में आप easily 60-70,000 rupees monthly net earning देख सकते हैं, which means 7-8 lakh rupee month annual आपकी net earning का potential है, which also means that with an investment of 15 lakh rupees, easily 2 years में between 21 to 24 months ये फंड की रिकवरी निकाली जा सकती है, राइट. So 5-6 lakh rupees monthly business, 35% gross margin, which means 2 lakh rupees gross margin. Average monthly expenses of 1.25 lakh रुपया, 60-70,000 rupees net earning monthly, 7-8 lakh rupees annual earning potential in this business. 2 years, less than 2 years break even. So बहुत ही exciting financial model बनाया है, बहुत ही realistic financial model है. So I think you should consider this. Okay. This is ये कंपनी के थॉट्स हैं कि हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर कौन होने चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक एग्जिस्टिंग फर्नीचर डीलर हैं या होम डेकोर आइटम्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप फ्रेंचाइजी हैं किसी और फर्नीचर कंपनी के, so this could be very interesting add on for you, right. जैसे हमारे डीलर्स हैं 125, we already have a lot of interest from our dealer network to add this franchisee, because dealers ने product की acceptance देखी है, product की movement देखी है market में, and now बहुत keen है वो franchisee add करने के लिए, full range लेने के लिए बहुत ज़्यादा keen है, right. At the same time कुछ हमें लगता है property owners जो ये करना चाहें business, definitely उनके लिए एक अच्छी opportunity है. Company is also open for a multi-unit partner, which means आप एक सिटी राइट ले सकते हैं एंड उस सिटी में 3-4-5 स्टोर जो भी बनने हैं वो सारे आपके होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रोहतक, हिसार जैसी मार्केट्स की, इवन पानीपत, डेफिनेटली 3-4 स्टोर्स कैन बी डन. सो आप एक सिटी राइट्स ले सकते हैं, सारे स्टोर आपके होंगे एंड पूरी सिटी की मार्केट आप कंट्रोल करेंगे. सो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट. की सपोर्ट फंक्शंस, अब कंपनी की तरफ से आपको एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर सपोर्ट फंक्शंस क्या रहेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट सप्लाईज एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनी ऑन अ वीकली बेसिस स्टॉक रिप्लेनिशमेंट करेगी और एक कंसिस्टेंटली वो हम मेंटेन करेंगे 7 डेज साइकिल. सो आपको न्यू स्टॉक एवरी 7 days यू गेट अ न्यू स्टॉक. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे हमने बताया, मार्केट डिमांड के हिसाब से हम न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं और वो उसको लेके आ सकते हैं. एग्रेसिव प्राइस पॉइंट्स एंड मार्जिन्स, हमेशा एक कोशिश रहेगी कंपनी की कि आपको बेस्ट प्राइस कंपनी दे एंड मार्जिन्स जितने हम इम्प्रूव कर पाएंगे विल वर्क ऑन दैट टू गेट यू बेस्ट मार्जिन्स ऑल्सो, राइट. Retail business, very important aspect, again, stock rotation and correction and end of season sales and promotional schemes. So ये दोनों aspect हैं जो आपको help करता है in terms of managing your stocks, right. Stock rotation and correction का मतलब ये है कि आपके अगर 5-10% स्टॉक ऐसा है जो मूव नहीं हो रहा है, तो कंपनी उसको रोटेट कर लेगी, आपके यहाँ से वो प्रोडक्ट पिकअप करके वी कैन ब्रिंग इन फ्रेश स्टॉक और वो प्रोडक्ट हम कहीं और किसी और लोकेशन पर डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ पर उसकी मूवमेंट हो जाएगी. सो स्टॉक रोटेशन है एंड एंड ऑफ सीजन सेल्स, प्रमोशनल स्कीम्स. कंपनी टाइम टू टाइम कुछ प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च करेंगी जिससे आपको स्टॉक क्लियरेंस में हेल्प मिलती है, राइट.
ट्रेनिंग एस्पेक्ट, प्रोडक्ट एंड कंपटीशन ट्रेनिंग, आपको जो भी स्टाफ है उनको हम प्रोडक्ट के ऊपर पूरी डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है कि रॉ मटेरियल कैसे है, प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या है, ऑन स्ट्रेंथ फीचर क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है. एट द सेम टाइम कंपटीशन ट्रेनिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब कस्टमर शोरूम पे आता है तो वो प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे कि ये नीलकमल से कैसे बेहतर है या सेलो से कैसे बेहतर है. एट द सेम टाइम वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारे कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सो दे वुड लाइक टू चैलेंज दैट ऑल्सो कि भाई ऑनलाइन में ये है अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, आप कैसे देंगे. सो कंपनी पूरी तरह से इसमें रेडी है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है सभी तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, कंपटीशन वाइज, ऑनलाइन ट्रेड वाइज, प्रोडक्ट वाइज. सो कंप्लीट ट्रेनिंग आपके स्टाफ को दी जाएगी, राइट. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मार्केटिंग सपोर्ट. सो 3 तरह से मार्केटिंग रहेगी इसमें. आपका शोरूम लॉन्च के टाइम पर कैसे एक्टिविटीज होनी चाहिए, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर इंसर्ट्स, एंड वो एक्टिविटी हम करेंगे. देन लोकल स्टोर मार्केटिंग, आपके लोकल मार्केटिंग कैसे हो, क्या कम्युनिकेशन जाना चाहिए. एंड थर्ड लेवल इज सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग प्लान, जो कंपनी अपने एंड से आपके लिए मार्केटिंग करती है. तो उसमें हम न्यूज़पेपर एड्स की बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं. सो ऑल 3 लेवल्स, लॉन्च टाइम पर, ऑनगोइंग मार्केटिंग एंड कंपनी मार्केटिंग. सो तीनों लेवल पर कंपनी आपको मार्केटिंग सपोर्ट देती है, राइट. So that brings us to our last and very important slide also. Key reasons to partner with Arofer. Of course, evolving India opportunity. अगर आप India opportunity समझें, तो increasing acceptance of plastic furniture, emerging new categories and applications, which means आप नए products market में लेके जा सकते हैं. Growing target customer group, residential है, commercial है, hospitality है, and lot of preschools, education space plastic furniture use करते हैं, events companies हैं. So वो segment भी grow हो रहा है. So and premium plastic furniture is a fast growing category. जैसे हमने starting में बात की, organized industry growing at 20% and EBOs की तरफ movement है. So company हर तरह से ready है. Excellent brand position, rich legacy of about 18 years in the industry, of course 40 years in the industry, 18 years for Bikaji himself. Vertical integration, manufacturing to retail, so at the manufacturing end, ability to do new products, and retail side, ability to bring in better products, better margins to our franchisee partners, right. Large product mix, ability to develop new products as per market demand, excellent market connect with existing relationships, and strong financial performance, proof of concept. So company हर तरह से आज ready है, prepared है, product mix के साथ, pricing के साथ, R&D है, so आपको हर तरह से support कर सकती है. Strong franchisee benefits, leverage on our experience and expertise in this business, product supplies, product mix, and high growth prospects in the industry. So overall, a very exciting opportunity. कंपनी का जो एक्सपीरियंस है 125 डीलर्स के साथ, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं EBOs में, and of course you can take the benefits of the experience. Yes, yeah, that should be all. Now I'd like to invite Mr. Maria and Vikas ji to take the discussion forward, please. थैंक यू अंशुल, वेरी एलैबोरेट. एंड विकास जी, मैं शुरू करूंगा आपसे कुछ क्वेश्चन लेना, क्योंकि वी विल ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस. वी हैव अनदर 15 odd minutes which we can really spend, and सोनिया और मैं आपसे कई क्वेश्चन पूछेंगे. और सोनिया, इफ यू कैन आल्सो स्टार्ट टेकिंग ऑन द साइड क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो. द फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे द प्रोडक्ट पे ही. प्रोडक्ट के अंदर हमारे को 2 चीज़ों पर डिस्कस करना है. एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस पॉइंट. और आप प्रोडक्ट की जब बात करें तो आप ये भी बता सकते हैं कि भाई क्या इनोवेशन आपने की है, और सेगमेंटेशन कैसे दिख रही है, आउटडोर कितना दिख रहा है, इंडोर यूजेज कितना दिख रहा है. अभी किड्स लाइन जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं. और आज अगर जो हम रिटेल मिक्स बनाएंगे, जो हमारा स्टोर होगा, उसके अंदर हम क्या रेंज रखेंगे.
ये तो 3 क्वेश्चन हो गए एक तरह का। पहले तो प्रोडक्ट पे बात करते हैं, क्वालिटी पे। दूसरा प्राइस पॉइंट्स पे बात करेंगे, अपने मार्केट के हिसाब से हम क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेटेड ऑपरेटर हैं, सीधा फैक्ट्री से रिटेल को दे रहे हैं, तो अपने प्राइस पॉइंट क्या है, कंज्यूमर को क्या फायदा होगा और उसका। और तीसरा जो हमारी ऑफरिंग है, जो हमारा रिटेल स्टोर में जो हम ऑफरिंग रख रहे हैं उसमें क्या मिक्स रख रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहला हम आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। प्रोडक्ट बड़ा सिंपल है, प्लास्टिक की चेयर, रिलायंस का दाना यूज होता है इसके अंदर, और बहुत ड्यूरेबल लाइफ है इसकी, कभी खराब नहीं होता। धूप में रखो, बारिश में रखो, अंदर रखो, बाहर रखो, और 2 साल की गारंटी देते हैं। टूट जाए तो वापस हो जाती है। बात करें हम प्राइस की, तो और एक इसमें मतलब प्रोडक्ट पे रहें अगर विकास जी, तो मतलब बाकी कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, नीलकमल है, ये वो है, इनके पास लार्ज फैक्ट्रीज हैं, हाँ, इनका और अपने डिफरेंशिएटर क्या है? इनका बेसिकली जो है ना, मतलब जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पास इतनी ज्यादा लोग हैं, इतना ज्यादा इनकी मार्जिन हैं कि ये सस्ता नहीं दे पाएंगे मार्केट कभी भी। बिकॉज ओवरहेड कॉस्ट्स। ओवरहेड एक्सपेंस इतने इन्होंने मतलब रखे हुए हैं इनके, कि मतलब दे विल नेवर कम टू आवर लेवल कभी भी। मतलब उनकी लार्ज क्वांटिटी के भी अब ऑर्डर देते हैं ना, तब भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपना सेटअप ऐसा बना रखा है। हमारे पास, अच्छा पहले उनके क्या है, लॉजिस्टिक्स इतने महंगी हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है बीच में, उसके बाद डीलर है बीच में, फिर रिटेलर, एक लंबी चेन। हम आउटलेट्स में सीधा फैक्ट्री से स्टोर्स पे भेजेंगे, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर गैप खत्म होगा, 10-15% डिस्ट्रीब्यूटर गैप। करेक्ट, वही लॉजिस्टिक्स, मैं बताना चाहता था अपनी ऑडियंस को, जो द वैल्यू एडिशन इज a lot of manufacturing companies are now directly retailing, so that the entire margin in between, which is called the distribution margin, from super stockist to distributor to reseller, super stockist और distributor का जो margin है वो इरोड हो जाता है। और क्योंकि ये कंपनीज लार्ज हैं, इनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वेयर हाउसिंग मेंटेन करनी पड़ती है, तो उससे इनकी कॉस्ट जो होती है ज़्यादा होती है। सेम प्रोडक्ट जो सेम रॉ मटेरियल से बनता है, जिसमें सिर्फ रिलायंस ही एक प्लास्टिक का दाना बनाता है, जिस दाने से लार्जेस्ट इंडिया की लार्जेस्ट प्लास्टिक इंडस्ट्री चलती है, उसी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से ये बनता है। सेम मोल्डिंग मशीन्स होती हैं जिनके ऊपर ये प्रोडक्शन होती है। तो क्वालिटी में जो रॉ मटेरियल है आपका, जो फिनिश है, वो वेरी सिमिलर होती है, ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो चेंज होता है। एनी क्वेश्चंस ऑडियंस यू हैव ऑन प्रोडक्ट, एंड आई थिंक प्लीज कीप आस्किंग, क्योंकि हम जितने क्वेश्चन आपके लेंगे उतना आपको क्लैरिटी होगी। और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से नहीं आते होते, तो उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो आप जाइए अपना क्वेश्चन पूछिए, एंड सोने और मैं वो क्वेश्चन लेते रहेंगे। Over to you, Vikas ji, on the price now. प्राइस जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम मार्केट में देने की हमारी वो है, मतलब हमने ज्यादा मार्जिन नहीं रखे हुए। हमारा काम है पहले मशीन। तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, जो जो ब्यूटीफुल दोस्त हमने बच्चों की देखी चेयर्स, जो मुझे लगता है आज घरों में डिमांड आ गई है, बच्चे भी घर से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाइस चेयर्स आई सॉ। अगर मैं उसी चेयर को लूं कि भाई वो चेयर अगर किसी और नीलकमल पे हो और अपने पास हो, तो क्या प्राइस पे डिफरेंस पे कंज्यूमर को मिल पाएगी? जस्ट अ डबल डिफरेंस हमारे प्राइस में और कंपनी के प्राइस में, जस्ट डबल का डिफरेंस। आप जस्ट एक कोई भी एग्जांपल दीजिए, कोई आउटडोर चेयर या कोई भी चेयर। जैसे भी आपने बेबी चेयर की बात करी है, बेबी चेयर जो है हमने उसका MRP रखा हुआ है 225 रुपये, और वही कंपनी की जो चेयर आती है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं 225 की, और उसके बाद फिर 10% डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, उसके बाद फिर 10% रिटेलर का मार्जिन, तो वो 350 रुपए की जाकर के कस्टमर को मिलती है। और वही हम 225 हमने MRP रखा हुआ है, जो कि वो 350 रुपए की बताते हाँ, और एमआरपी है ये, और इस इंडस्ट्री में एक एमओपी भी चलता है, जिसे मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस होती है, जिसमें आप जब रिटेलर हो जाते हैं तो वो आपको दिखाता है कि मेरी डीलर प्राइस ही 225 है, चलो आपको मैं जानता हूँ, तो इतना परसेंटेज कम करके वो कुछ ना कुछ देता है, तो वो भी एक एमओपी होता है, मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस, जो उसमें 10 से 15% का डिस्काउंट एक लाजमी डिस्काउंट है इंडस्ट्री के अंदर। 10% का डिस्काउंट एक बहुत रेगुलर डिस्काउंट है, तो अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। हैं। जितने भी प्लास्टिक की मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे नीलकमल है, सुप्रीम है, इन सब 1 साल की गारंटी देते हैं। We are the only company in India to give 2 years guarantee.
So 2-year warranty है, आप you can guarantee. Guarantee. It's not warranty. It's guarantee. It will Guarantee. be replaced. So you need to try hard to break the chair, Yes. and if you break the chair, you get new chair. So that's हमने the, क्वालिटी इतनी अच्छी बना दी है कि उसमें ब्रेकेज आएगी ही नहीं। मतलब अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने मतलब अगर हम हर साल 1 लाख शेयर बेच रहे हैं, 4 साल हो गए मेरे को, 4-4.5 लाख कुर्सियां बेची हैं, तो बामुश्किल 4000 कुर्सियां भी नहीं आई है हमारे पास। ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी। very वो भी interesting. 4000 कुर्सियां कस्टमर से नहीं आई है, वो भी मतलब जैसे गाड़ी से उतारते टाइम बंडल गिर गया, या 3 व्हीलर में लोड करते टाइम उसने ताला जोर से बंद कर दिया, इस तरह की ब्रेकेज है। मतलब हमारे प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी है, इसमें रिप्लेसमेंट का कोई चांस नहीं। Very good, very good. It's a very good. It's negligible, and that gives a confidence on a consumer, because retailer से जब आप खरीदते हैं तो रिटेलर अगर आपको 2 साल की गारंटी दे रहा है तो फिर शिफ्ट होना कस्टमर का बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कस्टमर अगर बोलता है कि नहीं मुझे नीलकमल ही चाहिए या कोई बड़ा ब्रांड चाहिए, तो वो अगर आपको लगता है कि आपको 2 साल की गारंटी मिल रही है और स्पेशली वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर आप उससे ज्यादा उसकी लाइफ समझते भी नहीं है, तो अगर आपको 2 साल की गारंटी मिल रही है तो कस्टमर शिफ्ट। हमने इस चेन को ठीक करने के लिए जहां फैक्ट्री में ही बड़ा स्पष्ट बड़ा लिखवा रखा है, वी आर कमिटेड टू गिव द प्रोडक्ट जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट टू अवर कस्टमर। और अगर कोई रिप्लेसमेंट आती है, हम पेनल्टी लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, भाई क्यों आई है वापसी। अगर 2 कुर्सियां भी आई हैं 1 लाख में तो क्यों आई हैं, हम उस पर भी पेनल्टी लगाते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे प्लांट है, हर आदमी को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कहीं भी हल्की सी भी गलती नहीं है, इस वजह से प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं आए। वेरी इंटरेस्टिंग। सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अपने जो रिटेल मिक्स है, क्या क्या प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि मेरी और जब आपकी डिस्कशन हुई थी तो हमने काफी इनोवेशन की थी नए नए प्रोडक्ट्स की, तो क्या क्या हम प्रोडक्ट लाइन इसमें डाल रहे हैं। चेयर्स एक कैटेगरी है जो बहुत मास प्रोडक्ट है, जो तो बहुत हमारा सबसे बड़ा मेन तो यही है कि प्लास्टिक चेयर्स में ही अपने आप में बहुत वैरायटी है, बहुत रेंज है, मीडियम, हाई, मोर हाई। उसके बाद प्लास्टिक के स्टूल्स हैं, टेबल्स हैं, पटरे हैं, नहाने की चौकियां होती हैं, स्टेप स्टूल्स हैं, नई नई इन्वेंशन करी हमने। हमने देखा लोगों को चढ़ने के लिए मतलब चेयर के ऊपर चढ़ जाते हैं और चेयर टूट जाती है। हमने स्पेशल एक स्टेप स्टूल इन्वेंट किया, डिजाइन करवाया, और वो स्टेप स्टूल सभी शॉप्स में, किराने की दुकानों पे, कपड़ों की जहाँ दुकानें होती है, ऊपर से सामान उठाना है, घर में किचन में शेल्फ ऊपर से उठाना है, आप नहीं उठा पाते हैं, पर छत्ती पे से सामान उठाना होता है। तो इस तरह की हमने ना R&D करते रहते। अब प्लास्टिक चेयर्स में ही इतनी ज्यादा वैरायटी डाल दी हमने। स्पाइन बैक वाली चेयर बनाई, मतलब आप उसके ऊपर 4 घंटे बैठे रहो, आपको थकावट नहीं। उसमें हल्की सी पीछे से फ्लेक्सिबिलिटी दे दी हमने, कंफर्ट दे दिया, कुशन दे दिया उसके अंदर। और उसमें 2 अलग अलग हमने डिजाइन बना दिए हैं स्पाइन में भी, क्योंकि लोग ज्यादा देर बैठते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो घर में बैठे हैं, वो बैठे हैं, उठेंगे ही नहीं 2-3 घंटे। तो एक तो बुजुर्ग आदमी वैसे ही थोड़ा सा थका होता है, शारीरिक रूप से भी मतलब थका होता है। तो हम अपने ये एक्सपेरिमेंट अपनी मदर पे करते रहते हैं। और नई चेयर आती है, उनसे पूछते हैं अभी ये आपको कैसी लग रही है, 2-3 घंटे उस पर बैठे रहते हैं मम्मी, और फिर बताते हैं हाँ यार ये चेयर अच्छी है कि इसको अच्छो मार्केट में ये अच्छी है। तो अब प्लास्टिक चेयर में इतनी रेंज होगी, उसके बाद हमने साथ साथ शुरू कर दिया प्रेस स्टैंड। अब लेडीज को क्या होता है, घर में कपड़े प्रेस करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रेस स्टैंड बना दिया। अब सीढ़ी एल्यूमिनियम की लैडर बना दी, प्लांटर्स हैं हमारे पास, और बच्चों की किड्स आइटम में हमारे पास कार्स हैं। और मतलब अभी हमने 35 मॉडल्स और ऐड कर दिए, प्रोडक्ट्स और ऐड कर दिए अपने अरोफर ब्रांड, ताकि हमारे पास जो प्लास्टिक चेयर लेने आया है वो देखेगा प्रेस स्टैंड पड़ा है, या प्रेस स्टैंड भी दे दो, एल्यूमिनियम की सीढ़ी पड़ी है यार ये भी घर में जरूरत है, ये दे दो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देख के बिकती हैं, आपको वैसे उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप एक्सक्लूसिव शोरूम में जाते हो आपको दिखता है ये भी है यहाँ पे, ये भी है यहाँ पे, तो वो फिर एक के साथ एक चीजें बिकती चली जाती। तो इस वजह से हम इसको अपनी सेल को मतलब ऊपर बढ़ा लेंगे, जो हमारा मेन मकसद। very interesting. So it is a lot of categories been done. Why I wanted to hit upon this, because as a retail showroom you have multiple choices. It is not only the chairs and
basic plastic furniture range, but it also has a home utility range. Home utility would have everything from packaging, gardening, or also solutions like stairs and a lot of other home utility. Home utility is a multi-billion dollar industry, and everywhere you go to China, you go to other places, you'll find specialty stores जो सिर्फ होम यूटिलिटी बेचते हैं. आज घर के अंदर बहुत सारी यूटिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, बाथरूम के प्रोडक्ट हैं, किचन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, अदर सेफ्टी प्रोडक्ट्स हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं. ये सारे प्रोडक्ट्स आपको इसमें मिलते हैं. सो दैट्स व्हाई रिटेल चेन का रीजन जो है वो बनाने का ये है कि हम ये सारी रेंज जो है होम यूटिलिटी, प्लास्टिक फर्नीचर एंड ऑल्सो किड्स activity which are the toys and other things also are part of that. So it actually addresses a good family purchase decision, so which means the different parts of that. I'll take one more question and then I will bring in Sonia to start taking a lot of questions from the audience. And this question is all about the rollout. क्योंकि ये बल्कि प्रोडक्ट है और हमने अपनी कम्युनिकेशन में, आज मुझे बहुत लोगों ने डायरेक्ट मैसेज भी किया था कि क्या ये हरियाणा के लिए ही है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए देख रहे हैं. और वो इसलिए किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई यह सिर्फ हम यहीं के लिए मार्केट कर रहे हैं. क्या हम ओपन होंगे विकास जी कुछ और मार्केट्स के लिए जाने के लिए? क्या अभी नॉर्थ इंडिया ही फोकस करें क्योंकि बल्कि प्रोडक्ट है, सप्लाई चेन, या कोई बड़ा पार्टनर आना चाहे आपके साथ जो बोले कि मैं एक पूरा राजस्थान में डेवलप करता हूँ आपके साथ मिलकर, एक डिपो डाले, वेयर हाउसिंग डाले और आगे अपने छोटे डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाए और रिटेल भी बनाए? क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी बन सकता है क्योंकि आपने यहाँ तो अपने 125 डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, लेकिन अगर आज कोई राजस्थान में करना चाहे ये चीज, यूपी इतनी बड़ी मार्केट है, आज यूपी के अंदर अगर आप अपना एक पूरा हब बना के 2-3 स्टोर भी खोलिए, छोटे छोटे स्टोर भी खोलिए लखनऊ के अंदर, लेकिन आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो बना सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सिटीज के अंदर 40-50 हजार पॉपुलेशन के सिटीज के अंदर भी इसकी दुकान 100% खुल सकती है, क्योंकि ये ऐसी यूटिलिटी है जो हर घर को चाहिए, ये हर घर की नीड है. It's a very essential product which is required, and especially when you go to tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 cities, it is a part of your regular furniture. It has replaced the other furniture. अगर आप जाएंगे बहुत छोटे सिटीज के अंदर तो आप जाके देखेंगे कि ये चेयर्स ही आपको कभी कभी ड्राइंग रूम में भी मिलती हैं, प्लास्टिक चेयर्स, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर एंटायर थिंग. हर ऑफिस के अंदर यही चेयर्स मिलती हैं. आप किसी भी ऑफिस में जाएं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, किसी यूटिलिटी एरिया जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, सब जगह आपको ये प्लास्टिक चेयर, ये बहुत बड़ी कमोडिटी बन गई है. बेशक वो केटरिंग वाले हों, बेशक किसी और के हों, हर जगह आपको यही चेयर प्रोड्यूस होती है. और इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन लेंगे कि भाई कितनी बड़ी हमारी जो होलसेल मार्केट है, इसमें जो इसमें लोग बल्क में लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी मार्केट है और वो भी एक रिटेलर के पास अवेलेबल होती है. 2 क्वेश्चन, एक तो रोल आउट में बताइए, और दूसरा अगर कोई स्टेट के अंदर आके आपका बड़ा पार्टनर बनना चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या उसके लिए भी आप ओपन है? रोल आउट की बात करें, हमने पहला फेज नॉर्थ इंडिया इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हमें लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हो कि अगर कोई बड़ा पार्टनर हमारे साथ जुड़ना चाहता है पूरा स्टेट के लिए, वी आर ओपन फॉर दैट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी कैन मैनेज इट, नो इशू. सो ग्रेट. सो इवन आज की डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेंचाइज इंडिया जो है ना, वो एक सुपर कनेक्टर है. हम कनेक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, तो ऐसा सोच के पॉसिबिलिटीज भी आती हैं. कई बार लोग पॉसिबिलिटी पार्टनरशिप की सोचते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं. तो आप अगर सोचते हैं कि आपको इस कैटेगरी और इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टनरशिप्स कैन इमर्ज. डोंट लिमिट योर थिंकिंग just by thinking that it is only one franchise. You can do multiple partnerships, and he's an entrepreneur. Vikas ji is an entrepreneur. He's also looking for multiple opportunities to come along. Over to you, Sonia, for your remarks and also some questions from the audience. Thank you, Vikas ji. कुछ questions I'll take from the audience. बहुत सारे questions जो आ रहे हैं, मैं एक एक करके कोशिश करूंगी. We'll try and cover all these questions. So Vikas ji, जो पहला question which I wanted to take up is on the stock. So हमारा जो तकरीबन 4 से 5 लाख का initial stock एक outlet पे जाएगा, and हमारे overall SKUs कितने होंगे इसमें, that is something I wanted to understand. And second, कोई भी ऐसा stock जो हमारा slow moving है या नहीं जाता है, तो उसका हमारी company policy क्या कहती है? तो आपका एक एक सवाल करके हम देखते हैं. आपने बोला कि अगर किसी का स्टॉक रुक जाता है एक जगह पे, तो हमारे पास अभी 125 डीलर है. मान लो एक चीज अंबाला में नहीं बिक रही है, लेकिन वो रोहतक में बहुत बिकती है. इट्स वेरी सिंपल फॉर अस टू पिक इट फ्रॉम हियर एंड सेंड इट देयर. कोई प्रॉब्लम नहीं है.
और हमारा करनाल में अपना रिटेल आउटलेट है। हम पहले कोई भी नया प्रोडक्ट लाते हैं, पहले 1 महीना अपने रिटेल आउटलेट पे उसको बेचते हैं, उसको समझते हैं अभी इसमें क्या क्या कमी है, क्या ठीक है, तो उसको मार्केट में सेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। जब मार्केट में एक्सेप्ट हो जाता है उसको फिर उसकी दुकान से होगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है, तो ऐसा स्टॉक ऐसा हो जाता है जो कभी आपके पास रुक गया है, नो इशू। हमने 2 साल हाँ की जी। गारंटी दे रखी है। आप 2 साल तक भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, हम वापस लेंगे, नो इशू होता है। और हर महीने के महीने हम आपका स्टॉक चेक करेंगे। जो आपकी फास्ट मूविंग आइटम्स हैं हाँ उसको आपको बेटर करेंगे, जो स्लो मूविंग है उसको वापस ले लेंगे, नो इशू। और आपका एक सवाल दैट और था, इज मैं repeat कर दूं। पूरा रिप्लेसमेंट होगा, राइट राइट। कैसे एक और जो क्वेश्चन है वो आपका है वेयर हाउसिंग को लेके। जैसे जो भी हम स्टॉक एक आउटलेट पे रखते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा भी स्पेस चाहिए होगा जिसमें हम इन्वेंट्री स्टॉक करेंगे? इज देयर अ वेयर हाउस आल्सो व्हिच इज रिक्वायर्ड? और अगर चाहिए तो वो क्या एवरेज प्राइस होना चाहिए? हमारे प्लान क्या है, हर स्टेट में एटलीस्ट 2 वेयर हाउस हमें चाहिए ही चाहिए, हर स्टेट। क्योंकि एक स्टेट में करीब करीब 100-125 हम स्टोर्स खोलेंगे, तो 100 स्टोर्स को हाँ खोलने जी। ऑपरेट करने के लिए हमें मिनिमम 2 वेयर हाउस चाहिए ही चाहिए। और इसमें फ्रेंचाइज पार्टनर को, बिकॉज आई वाज सीइंग वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर मुकेश, एंड तो एक जो हमारा शॉप है जो करीब 500 स्क्वायर फीट का है, इसके अलावा कोई और भी स्टोरेज एक फ्रेंचाइजी को रखना पड़ेगा इन्वेंट्री के लिए, या वो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ओनली स्टॉक करने के लिए? क्योंकि हम विद इन 7 डेज उसके पास सारा कुछ भेजेंगे। Okay. जो उसका सामान 1 हफ्ते में बिक गया, वो उसके पास मंडे को पहुंच जाएगा। हाँ तो मंडे जी। से संडे तक उसने बेचा है सारा सामान, अच्छा, वो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा, हमारे पास कंप्यूटर में आ जाएगा, ये इन्होंने सेल कर दिया। वही के वही सामान के पास मंडे को दोबारा अपने आप पहुंच जाएगा। ओके। सो हमारा वीकली रिप्लेनिशमेंट होगा सारे के सारे स्टॉक का, जो भी आपका उस मान लो हफ्ते में वीक स्टॉक में भी जाता है कोई आपको अगले रिक्वायरमेंट हफ्ते ऐसी मिल ज्यादा आ जाएगा। गई है, सपोज करो कि ठीक है, एक तो और मॉडल पर्टिकुलर वो खत्म हो गया है, तो हम उसको विद हाँ इन जी, 24 आवर दोबारा सेंड कर देंगे, नो इशू। श्योर श्योर। तो इसमें मुकेश जी, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट अलग स्टोरेज एरिया की नहीं रहेगी। एंड विकास जी, एक और जो क्वेश्चन है वो आपकी क्वांटिटीज के ऊपर है। कुछ श्योर बटवाल जी पूछना चाहते हैं, कोई मिनिमम ऑर्डर भी रहता है, या कोई भी क्वांटिटी जो एक हफ्ते में सेल होती है वो आप रिप्लेनिश करेंगे, या कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी? नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, जितनी आपके हफ्ते में सेल होगी उतनी आपके पास मंडे को पहुंच जाएगी एवरी मंडे। ठीक है। और इसमें जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है, हाउ इज दैट बॉर्न? It is including. We will send FOA. ओके, It's our distribution. We have to send it at your brand store. श्योर श्योर। आपने 1 रुपया नहीं खर्चना ट्रांसपोर्टेशन पे, आपके पास जो पहुंचेगा सामान वो उस कॉस्ट उसके अंदर डली हुई ऑलरेडी। ठीक है विकास जी, एक क्वेश्चन और लूंगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डीलर्स के पास भी होता है और एक्सक्लूसिव आउटलेट अगर हम खोलते हैं तो इसमें कोई हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहेगा, या प्राइसिंग हम कैसे कंट्रोल करेंगे एक एक्सक्लूसिव स्टोर की, और वही प्रोडक्ट अगर हमारा डीलर के पास भी रहता है तो उसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा मेन कंपटीशन है ब्रांड से, जो कि नीलकमल, सेलो, सुप्रीम, ये है। हमारा प्राइस उनसे ऑलरेडी हाँ जी। इतना कम है, जितने में मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं मिलती, उससे सस्ते में तो हम रिटेल में दे देंगे। अब एक चेयर की मैं बात करता हूँ, जो हमारा 901 मेटालिक है, आपको मैं प्रोडक्ट कैटलॉग अभी शेयर करूंगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सेम वही चेयर इटालिका कंपनी बनाती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट उसकी 575 है, और हमारा रिटेल कॉस्ट है उसका 550 MRP। आप समझो, अब डिस्ट्रीब्यूटर जब 575 की लेगा, उसको 20 रुपए भाड़ा जोड़ेगा और अपना 25 रुपए मार्जिन जोड़ेगा, वो 600 रुपए की रिटेलर को देगा। रिटेलर को भी उसमें अब कम से कम भी 50 रुपए मार्जिन चाहिए, तो 650 की बेचेगा। हमारा MRP 550 है, राइट। तो प्राइस इज नॉट ए प्रॉब्लम। मैंने बहुत रिसर्च कर लिए, हमने 125 जो डीलर हमारे यहाँ पर हैं उन पे सारे हमने ट्रायल करके देख चुके हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको ब्रांडेड में मार्जिन नहीं मिलता, इसमें मार्जिन मिलता। राइट। एंड क्योंकि जो भी बीच का आपका मार्जिन होता है वो सारा का सारा आप अपने फ्रेंचाइज पार्टनर को और एंड कंज्यूमर को आप दे सकते हैं। मेरे पास एक दिन एक डीलर का कॉल आया था, उसको डाइनिंग टेबल चाहिए थी, सिर्फ 2 डाइनिंग टेबल। उसके लिए हमने स्पेशल ट्रांसपोर्ट पे उसको 2 डाइनिंग टेबल भेजी, विद इन 24 आवर्स हम डिलीवरी दे देते।
एंड विकास जी, एक क्वेश्चन मैं और लूंगी, हमारा जो टर्म है एग्रीमेंट का, दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई एम सीइंग फ्रॉम मंजीत दून, एंड वुड लाइक टू नो कि हमारा टर्म क्या है एग्रीमेंट का, और अगर हमारा टर्म जैसे एक्सपायर होता है उसके बाद रिन्यूअल के हमारे क्या टर्म्स रहते हैं, आप एक फ्रेंचाइजी और देते हैं, कोई भी ऐसा टर्म जो रिन्यूअल के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें। मुझे आपका सवाल क्लियर नहीं है, एक बार दोबारा। क्या जी, रिन्यूअल का टर्म, जैसे हमारा जो एग्रीमेंट है वो कितने साल का होता है, और वो जब टर्म फ्रेंचाइजी खत्म के हो साथ जाता है आपको, हाँ जी, फ्रेंचाइज टर्म जब हमारा खत्म हो जाता है तो रिन्यूअल के ऊपर हम क्या फ्रेंचाइज अपना किस तरीके से रिन्यू करते हैं, हमारा कोई एक्स्ट्रा फीस हम लेते हैं? इट्स ओनली वंस एक बार इसके साथ फ्रेंचाइजी के साथ एग्रीमेंट हो गया, एक ही बार हमने सिक्योरिटी ले ली, और वो भी रिफंडेबल है सिक्योरिटी। हाँ जी, हमने कुछ नहीं लेना, हमने डीलर को देना है, लेना कुछ नहीं है। दिस इज वन टाइम, जो भी रिलेशनशिप होगा वो आपका वन टाइम फी होगी, एंड दिस अ सिक्योरिटी व्हिच विल बी केप्ट विद यू, और अगर वो टर्म भी खत्म होता है एक्सटेंड हो जाएगा, और वो सिक्योरिटी अगर टर्म के बाद आदमी नहीं कंटिन्यू करना चाहता, दैट सिक्योरिटी वुड बी रिफंडेड। आई होप मंजीत जी योर क्वेश्चन इज आंसर्ड, राइट? विकास जी, एक दो क्वेश्चन और थे, जैसे महाराष्ट्र से हैं, कैलकाटा से हैं, आई विल लाइक टू मे बी रिट्रीट फ्रेंड्स, कोई भी अगर नॉर्थ के बाहर की इंक्वायरी है, अगर एक बड़ा पार्टनरशिप आप लेना चाहते हैं, दैट इज व्हाट वी कैन डिस्कस, बट सिंगल यूनिट outside North India, we will not be able to consider at this point in time. If you're looking at becoming a bigger partner, you can reach out and we can come up with maybe a business proposition for you in your city. And Vikashi, क्योंकि we are closing we already past one now, और एक कोई भी आप एक मैसेज सब लोगों को देना चाहते हैं, कोई रिमार्क्स आपके हो, फीडबैक हो, मैसेज सारा ऑडियंस जो आपको सुन रहे हैं, लाइव भी है हमारा फेसबुक पे, एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू यू? मुझे अपने पिताजी की एक बात याद आई है, जो मुझे सिखाया करते थे, कहते हैं कि आंखें अपनी आसमान पे रखो लेकिन पैर जमीन पे, ज्यादा हवा में मत उड़ो, जमीन पे रहो, जितना रहो खुश। Very good thought, very good thought. Very good. And that's why your value system is very good. With such a success you got with a very humble beginning, and that's very important that everybody should learn. Every entrepreneur should learn this statement. Sometimes elders actually give you a lot of good advice. At that time हम नहीं समझते, लेकिन जैसे जैसे जीवन आपका बीतता है और आप एक स्टेज आती है तो आप रियलाइज करते हैं कि वो सब बातों में कितनी इम्पोर्टेंस थी. आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं गगन जी, वो भी हैं, उनके भी 2 क्वेश्चन थे, वो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने में, सो उनका भी मैं थैंक करना चाहूँगा. और विकास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बुला के आपको, और आप एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत अच्छी विजन है आपका, आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की है और बहुत बड़ी जर्नी है. एंड हम कोशिश करेंगे फ्रेंचाइज इंडिया की तरफ से पूरी मेहनत करें और आपके ब्रांड के साथ हम भी जुड़े रहें, और जैसे से आपकी ग्रोथ हो हमारी भी आपके साथ उसी तरह से ग्रोथ होगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टुडे विकास जी, एंड टेकिंग टाइम आउट on Sunday. Over to you, Sonia, for your remarks. Again say thank you so much Vikashi for a very good presentation, and also जो आपके thoughts हैं, these are very valuable thoughts. जितनी भी inquiries आ जाई हैं, we'll reach out to all of them. And I also see someone who's mentioned that they want to partner on a bigger way, West Bengal ke liye, and also maybe for some other regions that he wants to club together. So we'll reach out to you, sir, and we'll also connect you with Mr. Vikas Arora in the coming week. एंड विकास जी, एक दिन हम रख सकते हैं जिसमें हम आपकी सारी कॉल्स या मीटिंग्स जो भी हमारी हो सकती हैं जूम पे, टेलीफोन पे, वो हम आपकी कराने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में. एंड इफ आई कैन कंफर्म, अर्चना, डू वी हैव अ डेट दैट वी हैव डिसाइडेड और वी नीड टू डू दैट? Yes, 31st of May, which is Monday, is our discovery day. ठीक. तो फ्रेंड्स 31st में है. जितनी भी आपके आज इंक्वायरीज आई हैं, हम 31st से पहले आपको सारी प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल्स हैं आपको दे देंगे. यू कैन रीड थ्रू दैट, एंड 31st को आपकी 1-to-1 कॉल डिस्कशन हम विकास जी से कराएंगे. फॉर एनी रीजंस, इफ एनीबडी इज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे, we'll be happy to accommodate days even prior or even afterwards. So friends, thank you so much for being with us for the last almost an hour and 15 minutes, and thank you so much Vikas ji for being with us. Over to you, Archana. So thank you so much Vikas sir, आज हमें join करने के लिए. Thank you so much Gaurav sir, Sonia ma'am. Thank you so much Anshul for the presentation. We would like to thank all the dear participants who have joined us today. We request you to save our
business hotline number, which is 9717683838. We have kept 31st of May, which is Monday, as a discovery day where you have chance to meet to have one-to-one interaction with Mr. Vikas ji. Please do book your slot at the same business hotline number. We also request to save this number in your phone book because we are giving regular updates through our broadcast messages. Do connect with us at different social handles and platform. Also visit us, subscribe our Facebook page. Franchise India Brands Limited is the path where you can go. We have the entire library where we have kept each and every recording of the previously done webinar and different submits we have done. You can also connect with Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs. And since it's Sunday is always very special for us because we try to maximize your day with maximum business opportunity. And we have back-to-back show for you. At 4 p.m., we invite you to join us for South India show where we are bringing top 10 business opportunities for you. At the same business hotline number, you can do registration so that you get a confirmation mail on your mail ID. And after that, we invite you to join us for Nasik chapter where again, we are bringing top 5 business opportunity for you. Time for the webinar is 7 p.m. So we have 2 shows today, 4 p.m. and 7 p.m. And tomorrow, under 12 p.m. Business Opportunity with Chai webinar series, we want to invite you for Local Mandi. That's the brand we are bringing. It's the brand which represents the food and grocery retail vertical. So please do registration for all the 3 webinars so that you get a maximum business opportunities as well as brands representation from our side. Thank you so much once again for joining in today. Have a very safe day. Keep very good care of yourself. Thank you so much. Thank you, Vikas sir. Thank you. Thank you. Bye, sir.